Greetings, Arunachal Pradesh. Today we are here at Jawaharlal Nehru College, Lower Campus, Pasighat, for the grand inauguration of the 57th Hilltop Radiant College Day Celebration 2025. The three-day event, running from November 9th to 11th, kicked off this morning with a formal ceremony with the presence of the prominent dignitaries, Honorable Minister Mr. P.D. Sona, gracing the occasion as the chief guest, Honorable Minister Mr. Ojing Tasing as the guest of honor. We also have special guests, Mr. Ninong Yiring and Mr. Tapu Darang, Honorable MLAs. Stay with us while we bring you the highlights of the inaugural function. The Jain College is thrilled with joy and gratitude to witness the benign confluence of the political, academic, public administration, luminaries, and dignitaries of the state sharing our College Day Celebration 2025. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to Sri P.D. Sona, Honorable Minister for Education, Tourism, Rural Works, Parliamentary Affairs and Libraries, for accepting our invitation to grace the inaugural session of the 57th College Day celebration as a chief guest. On behalf of all the students of Jawaharlal Nehru College, I extend a warm welcome to each and every one of you on this joyous occasion of our 57th College Day celebration Hilltop Radiance 2025. It is our great honor to welcome our honorable chief guest, Sri P.D. Sona Sarji, Honorable Minister of Education, Tourism, Rural Works, Parliamentary Affairs and Libraries. Sir, your presence among us today is truly inspiring and adds immense value to this celebration. I also extend a heartfelt welcome to our honorable guest of honor, Sir Ojing Tasing Ji, Honorable Minister of Rural Development, Panchayati Raj, Corporation and Transport. तो इसलिए मैं यहाँ जब भी बुलाता हूँ मैं आता हूँ क्योंकि मैं भी इस कॉलेज का ही प्रोडक्ट हूँ। तो जब भी कॉलेज वीक का बात करता है, जेएनसी का बात करता है और जब यहाँ का कॉलेज का पढ़ाई या स्थिति का बात करता है तो एक हमेशा एक कनेक्शन रहता है कि अभी कॉलेज कैसे हो गया, अभी कॉलेज कैसे है, लोग कैसे वहाँ के वो प्रिंसिपल साहब है या नहीं या टीचर है या नहीं, इसका डिस्कशन होता है। और जहाँ तक मुझे याद है, मालूम है कि बहुत ही कम
टीचर्स, तो उस वक्त मतलब हम लोग जब कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे, उस वक्त टीचर्स बहुत ही कम रह गया यहाँ पे। उनको मिलने का भी, जो कम रहेगा उनको मिलने का मौका मिलता है। और जो मेरा दोस्त था, मेरा स्कूल का बैचमैन लोग यहाँ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर होके आ गया है। तो समय का चेंज के मुताबिक हर चीज बदल रहा है। फिर नया नया चेहरा, युवतियां उभर के आ रहा है। तो उसको देखते हुए दिल में एकदम ऐसा खुशी महसूस होता है, लगता है कि खुद अभी तक हम इस कॉलेज में हैं। तो मैं हमेशा से और हर जगह यही एडवोकेट करता हूँ, एंड इन इवन द NEP 2020 also emphasizes holistic development of the students. Earlier we used to call the sports activities, the cultural activities as a co-curricular activity, but it's not any longer a co-curricular activity. It's an integral part of your academic activity. आपको पढ़ाई भी करना है, फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होके आगे जाना है। दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी ऑर्गेनाइज, जहाँ पे हमारे लोगों को compete करना। और ये मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी कोई कंपटीशन होता है, कोई लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है विनर बनने के लिए। एवरीवन वांट्स टू बी अ विनर, बट माय टेक इज the true winner is the one who takes the defeat gracefully and try to win next time. ये आपका स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो अभी जो हमने ओथ टेकिंग करा है, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब यही है। ये नहीं कि हमको कप जीतना है, मेडल जीतना है। एक जो बॉन्ड होमी क्रिएट होता है, जो इसमें स्पोर्ट्स इवेंट से एक दूसरे के साथ में कैसे घुल मिल के रहना है, टीम वर्क कैसे होना है, डिसिप्लिन कैसे होना है, ये सब चीज़ सिखाता है। टुडेज विजिट आपके द्वारा आपको क्या लगा कि यहाँ पे जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पे, और जो भी एनवायरनमेंट है एकेडमिक को लेके ना, आपको आप वो सब में कौन सा आप अपग्रेड करना चाहेंगे वो सब के बारे में? तो उसके बारे में मैं प्रिंसिपल से भी डिस्कशन, जब भी मैं आता हूँ प्रिंसिपल से मुलाकात भी होता रहता है। और सुबह हमारा स्टूडेंट यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी आया, तो उन लोगों का जो भी ग्रीवेंसेस है, तो देखिए वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स डजंट चेंज ओवरनाइट, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। एंड अरुणाचल एज अ स्टेट इज़ अ ह्यूज स्टेट, और हमारा अपना जो फंड्स का भी है, किस तरीके से जुडिशियसली हर कोने में हमको हर सेक्टर में देखना है। तो आफ्टर द पेमा खांडू गवर्नमेंट हैज कम, द utmost attention is being given to the education sector. आपको पता होगा कि कितना बजट अनाउंसमेंट भी है, तो दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्रास रूट दैट कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट, वी जस्ट कैनॉट गो रैंडमली। तो जैसे अभी आज भी कुछ लोगों ने कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज बताया थ्रू द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, है उसको मैंने अपने स्पीच में भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं जरूर करूँगा। पिछले बार भी आया था, कुछ चीज़ का इन लोगों ने, और स्टूडेंट्स का तादाद बहुत है, क्लासरूम कम है, उसके लिए भी मैंने कुछ सैंक्शंस कर दिया। एंड एवरी ईयर वी काइंड ऑफ गिव funds for infrastructure in all the colleges, or I think JNC Pasighat is one of the biggest beneficiary of the government funding. Okay, and sir, from your point of view, how do such kind of celebrations take, like this college day? ये सब celebration तो like we always say that students should be developed holistically. Yeah, आपको सिर्फ physical, mental, एकेडमिकली हर तरीके से उनको डेवलप करना है। सो लाइक आई सेड, NEP में अब ये जितने भी हमारा को करिकुलर एक्टिविटी को काफ़ी एम्फेसिस दिया है। तो एवरीवेयर वी गो वी ट्राई टू एडवोकेट टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। खेल कूद भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तभी जाके एक पूर्ण रूप से एक हमारा युवा डेवलप होगा। यू जस्ट कैन नॉट जस्ट चैनलाइज इन वन डायरेक्शन, दैट विल be a wrong way of bringing up the students. Okay, and sir, in this year we have come across many unfortunate cases कुछ, और ये सैनिक स्कूल को, ये रिसेंटली सैनिक स्कूल का जो केस हुआ, उसको देख के आप लोग क्या प्रोटोकॉल्स लाएगा? सी, आपका जो क्वेश्चन है सैनिक स्कूल को लेके, सैनिक स्कूल डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं आता है, बट स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग जरूर जाता है, लेकिन ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन और जिसका पूरा देख रेख आर्मी के अंदर है। तो जो GOC है शायद वो है, उसका बोर्ड का चेयरमैन है।
तो yesterday I visited the school also to take a update कि वहाँ पे जो एक बहुत ही एक दुखद जो एक घटना घटा है उसका जस्ट अपडेट लेने के लिए एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे सारा जितने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और जितने भी लोग हैं उनके साथ में हम लोगों ने, और मैंने एसपी साहब को भी बुला के उसका जायजा लिया है। तो आई एम टोल्ड दैट द जितने भी बच्चे जो भी इन्वॉल्व था उनको अभी डिटेन करके रखा है। तो सिंस दे ऑल अ जुवेनाइल, तो इट हैज़ टू गो थ्रू अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ओनली। सो इस पर स्टेटमेंट्स आएंगे, सीसीटीवी फुटेज, ऑल द प्राइमा फेसी एविडेंस, जितने भी आपका सारा कुछ देख के इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगा। एंड स्कूल को तो हम लोगों ने एट द मोस्ट वी कैन गिव देम एडवाइस। आई टोल्ड देम कि हमारा रैगिंग इज ऑलरेडी बैंड एंड देयर इज एडवाइजरी इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्ग बैक कि नो रैगिंग इन नो फॉर्म इज अलाउड इन द स्कूल। तो इसको आप लोगों ने इसको करना चाहिए था। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे पूरा बैंड एंड वी हैव पुट अप ऑल द एडवाइजरीज एंड द पोस्टर्स एवरीवेयर इन द स्कूल टेलिंग देम कि रैगिंग इज टोटली बैंड। क्योंकि तो उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो अभी उसको लेके कॉग्निजेंस लेके अभी पुलिस इज इन्वॉल्व, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर किस तरीक़ा से आगे अनफोल्ड होता है देखते हैं। तो ऑब्वियसली जस्टिस विल प्रिवेल। जुवेनाइल इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा अलग एंगल में चला जाता है। गुड आफ्टरनून सर, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मिस्टर अनुग लिबांग, यूनियन एडवाइज़र हूँ जेएनसी स्टूडेंट यूनियन का। ठीक है, अब आज का प्रोग्राम 57th हिल टॉप रेडियंस सेलिब्रेशन कॉलेज डे, आप इसका कुछ डिटेल्स बता दीजिए प्रोग्राम का। आज इनॉग्रल सेरेमनी था जिसमें हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन टूरिज्म हम लोग का पीडी सोना जी ऐसे चीफ गेस्ट आए हैं, और हम लोग का जो आदि के मिनिस्टर श्री ओजिंगता सिंह जी भी आए ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर। साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट में हमारे लोकल एमएलए श्री तपु दारांग सर और हमारे 37 कॉन्स्टिट्यूंसी के निनोंग इरिंग सर आए, और बहुत सारे डिग्निटरीज लोग भी आज पहुँचे और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ आज 57th कॉलेज डे सेलिब्रेशन का। सर, आज का ये जो कॉलेज डे है इसका कितना हाउसेस है ना, एंड अभी तक क्या क्या लिटरली कल्चरल और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो भी हो चुका है और जो होने वाला है उसका बारे में आप अपडेट और डिटेल्स बता दीजिए। ये इस बार जो है पहली बार हुआ है जेएनसी का हिस्ट्री में कि जो हाउसेस है हम लोग ने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किए, जैसे 3-4 डिपार्टमेंट एक हाउस में। ये इसलिए किया गया था ताकि मतलब थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग हो बच्चा लोग का, बच्चा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से, क्योंकि अगर सेम ही डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट मतलब एक ही साथ में होते हैं तो जान पहचान ज़्यादा होते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट हम लोग का यहाँ में 5000 स्टूडेंट है तो एक दूसरा को नहीं पहचानते, अच्छे से नहीं जानते। तो अगर डिपार्टमेंट करेगा तो एक दूसरे को जानते हैं, मैक्सिमम पीपल्स लोग को जानते हैं, स्टूडेंट्स लोग को एक साथ जानते हैं, तो मालूम होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है लिटरेरी में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट जो है स्पोर्ट में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट जो है कल्चरल में अच्छा है। तो वो सोच के इस बार हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया कि वाई नॉट 4-5 डिपार्टमेंट मिल के एक हाउस बनाया जाए। तो इसमें हम लोग का लोहितांग हाउस है, कोमदी हाउस है, कांगतो हाउस है और दाफा हाउस है। सब हम लोग जो है माउंटेन पीक के नाम से दिया है। और अभी का जो अपडेट है, सो यूजुअली हम लोग का ट्रेडिशन होता है कि लिटरेरी इवेंट 1-2 दिन पहले ख़त्म होता है। तो लिटरेरी इवेंट जो है कल ही ख़त्म हुआ है, और गेम्स एंड स्पोर्ट तो लगा हुआ है। कल कुछ जैसे लीग मैचेस फुटबॉल्स के, वॉलीबॉल्स के वो हो चुके हैं। आज और कल और परसों तक जो नॉकआउट मैचेस है वो सब होगा। फिर एथलेटिक लोग होगा, एथलेटिक जो गेम्स होगा जैसे रनिंग रेस हुआ, लॉन्ग जंप, हाई जंप हुआ, वो सब होगा। और कल्चरल तो आज शाम से शुरू है, 3 नाइट तक कल्चरल रहेगा। तो अपडेट तो वही है। गुड आफ्टरनून मैम, आज को तो ये जेएनसी कॉलेज का 57th सेलिब्रेशन हुआ, कॉलेज डे शुरुआत के लिए इनॉग्रेशन हुआ ना, तो उसका रिगार्डिंग आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली कराने के लिए, एंड ऑल्सो कौन कौन इन्वॉल्व था ये आपको सक्सेसफुली मदद किया है? कॉलेज वीक ये 57 कॉलेज डे सेलिब्रेशन को सक्सेस कराने के लिए तो सबसे बड़ा हाथ बोलने में तो हम मेरा फैकल्टी मेंबर्स ना, जितना भी मेरा यूनियन एडवाइज़र था वो लोग है, और साथ ही साथ मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर वो लोग ने भी बहुत साथ दिया है ना, मर मिट के दिन रात। तो
हम अकेला से तो नहीं हो पाना था, सभी मिलके किया है। मेरा यूनियन एडवाइज़र जितना फैकल्टी मेंबर्स है वो सब किया है। ओके एंड मैम, आप ये साल का जीएस है, जनरल सेक्रेटरी, तो आपने ये जेएनसी पे आपने क्या क्या डेवलपमेंट लाया है अभी तक, एंड आप फ्यूचर पे क्या क्या डेवलपमेंट और लाएगा? डेवलपमेंट का तो मेरा टेन्योर का बाद से अभी शुरुआत ही हुआ है ना। Yes. तो हम लोग को टेकिंग भी थोड़ा लेट हुआ था, तो इसलिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा आज का मेमोरेंडम का थ्रू से भी ना, तो उसमें भी सर लोग, मिनिस्टर लोग ने भी बोला है कि हाँ वो लोग कर देगा ना, तो हम कोशिश करेंगे उसको फॉलो अप करके जितना हम मेमोरेंडम में डाला है उसको फॉलो अप करके लाने के लिए कोशिश करेगा। The 57th Hilt of Radiance College Day celebration at JN College has officially commenced. Towards the conclusion, we wish the JN College all the best for a vibrant and successful celebration over the next 3 days. Now, signing off with camera person Krishna Prasad, and I'm your reporter, Miss Nayangiring.